Hallo? Hi Tim, ich bin's. Und? Alles klar? Hallo, Alia. Ja, alles okay. Und bei dir? Auch alles gut. Du sag mal, du hast doch bald Geburtstag. Machst du jetzt eigentlich eine Party oder nicht? Hast du dich entschieden? Ach, ich bin irgendwie viel zu spät dran mit allem. Vielleicht will ich eine Feier machen, aber ich weiß nicht wann und wo. Na, vielleicht kann ich dir ja helfen. Und klar machst du eine Feier. Ich erinnere mich noch gut an letztes Jahr. Die Party war doch super. Ja, vielleicht. Hast du eine Idee? Warum feierst du nicht bei dir zu Hause? Jeder bringt was zu essen mit, dann ist es doch gar nicht so viel Arbeit. Ja, aber du kennst doch unseren Nachbarn. Der mag uns nicht und schimpft immer, dass wir so laut sind. Ich glaube, da kann ich nicht zu Hause feiern. Das gibt nur Ärger. Ich will ja, dass die Leute auf meiner Party Spaß haben, sich unterhalten und tanzen. Ach so. Hm. Vielleicht kannst du in einer Bar feiern? Weißt du denn schon, wie viele Leute du einladen willst? Ich weiß noch nicht. Vielleicht 30 oder 40 Personen. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wer Zeit hat. Also komm, jetzt sei mal nicht so negativ. Hast du heute Abend Zeit? Wir können uns doch treffen und deine Party richtig planen. Echt? Das ist wirklich nett. Danke. Na also, treffen wir uns im Café Kosmos um 7:30? Im Café Kosmos? Das ist eine super Idee. Vielleicht kann ich ja auch da feiern. Das können wir ja dann nachher gleich fragen. Also, ich freue mich schon sehr auf die Party. Super. Bis heute Abend. Ciao! आलिया गलत लिख दिया मैंने। हम्म, कर दो ना उसको। देखिए, पहला बोला आलिया ने, machst du eine Party? Hast du dich entschieden? Entscheiden का मतलब होता है to decide। Entscheiden का मतलब होता है decide, और ये परफेक्ट फॉर्म है यहाँ पे। Entscheiden का entschieden हो जाता है परफेक्ट में। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है आपकी haben, और Entscheiden का क्या हो गया? Entschieden हो गया। Have you decided? ऐसे बोलना होगा ना। तो ये बोला आलिया ने। फिर आलिया बोल रही है ich erinnere mich gern an die Party vor einem Jahr। एक साल पहले की पार्टी मुझे याद है, ऐसा कहना चाह रही है। erinnern का मतलब होता है टू रिमेम्बर। erinnern का मतलब होता है टू रिमेम्बर, है ना। और थर्ड है आपका mein Nachbar ärgert sich when wir laut sind। मेरा जो पड़ोसी है वो गुस्सा हो जाता है जब हम लाउड होते हैं, मतलब शोरगुल करते हैं, इसका मतलब ये हो गया, है ना। पार्टी होगी तो सीधी सी बात है कि शोरगुल तो होगा ही होगा भाई, है ना। लोग आएंगे जाएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे, हॉर्न भी बजाएगा, म्यूजिक भी तेज चलेगा, है ना। फोर्थ है ich hoffe die Gäste tanzen auf der Party und unterhalten sich। मैं आशा करता हूं कि लोग पार्टी में डांस करें या फिर आपस में बातचीत करें, चिटचैट करें, unterhalten एंटरटेन करें, है ना। तो ये बोला टिम ने। और आलिया कह रही है treffen wir uns heute Abend, आज शाम को मिले। और सिक्स है ich freue mich auf die Feier, I am looking forward for the celebration, या to the celebration, जो भी है ना, कि या आई एम हैप्पी फॉर द सेलिब्रेशन, ये मतलब हो सकता है इसका। तो ये आपके आंसर्स थे। अब देखो नई चीज आई है यहाँ पे, शर्मा जी, नई चीज आई है यहाँ पे, देखो नई, बिल्कुल नई, कभी नहीं पढ़ी अपन लोगों ने ना। ये देखिए सर, मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन करूंगा यहाँ पे, ध्यान देना आप जरा। ये देखो, ये डिश, ये मिश, ये जिश, ये जिश, ये उन्स, और ये मिश, ये क्या चीज है? वो नहीं है ये, है ना। ये नई चीज आई है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन। क्या बोलते हैं इनको? रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन बोलते हैं। परसेंट देखो, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो रिफ्लेक्सिव होती है, यानी कि ऐसी वर्ब जो खुद की बात करती है ना। आदमी खुद मिलता है ना। आदमी खुद गुस्सा गुस्सा होता है, आदमी खुद चिटचैट करता है, आदमी खुद खुश होता है, और ऐसे ही आदमी खुद याद करता है, और आदमी खुद ही डिसाइड करता है। ये सारी वर्ब आ रही है ना यहाँ पे, इनके साथ रिफ्लेक्सिव आता है, यानी कि
ये दिख रही है आपको, ये वर्ब, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है सारी, देखो, ट्रेफेनोन्स, फ्लोएमिश, यानी कि इन इन वर्ब, ये वर्ब स्टार्ट किस होंगे, जिससे, जिस के साथ स्टार्ट होती है वर्ब्स। और फिर जब सेंटेंस बनाते हैं तो इस जिसको हमें सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। चेंज कैसे होता है, देखो, इसको हेडिंग डाल दो आप एक बार यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन ना, यहाँ पे लिखो आप रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन। तो जो आपका जिश है, जिस क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन हुआ, तो इश का क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स में, मिश हो जाता है दोस्तों, डू का डिश हो जाता है, नहीं पढ़ा है, एर एस जी का जिश हो जाता है, वो अकुजिट में पढ़ाए थे बेटा जी, ये वो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए थे, है ना। तो वहां पे तो एर का तो इन होता है, जी का जी होता है, एस का क्या होता है, एस का ऐसे ही रहता है, यहाँ पर जिश हो गया ना, चेंज हो गया ना। ऐसे वियर का उन्स हो जाता है, ईयर का ओइश हो जाता है, और जी जी का जिश हो जाता है। ये लिख लो जी एक बार, ये है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन ना। हाँ जी, समझ में आया नहीं आया, शर्मा जी, यस सर। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यानी कि जो वर्ब आप देखोगे ना, जो वर्ब होती है वो हमेशा जिससे स्टार्ट होगी, है ना, और जो वर्ब जिससे स्टार्ट हो रही है उनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो लिस्ट दे रखे, रिफ्लेक्सिव वर्ब कौन कौन सी, एर्नैन, एनशाइडन, एर्गेन, ट्रेफन, फ्रोइन, unterhalten, इसके अलावा और भी वर्ब्स है खूब सारी, ऐसी बात नहीं है ना। तो देखो ये कहाँ मिलेगी आपको, एक बार दिखा देता हूँ, देखो डिक्टोसी पे आप जाओगे ना, डिक्शनरी पे देखो, यहाँ पे आप डाल रहे हो उल्टर, आपने बोला एंड शाइडन, देखो एंड शाइडन डाला, एंड शाइडन देखो, स्पेलिंग गलत है, एंड शाइडन, देख लो। अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव आ रही होगी 100%, एंड शाइडन, एंड शाइडन नहीं आ रही, नीचे देखो कहीं आ रही होगी, ये रही देखो, जिश अंदर एंड शाइडन आ गया ना, 100% ये रही, जिश एंड शाइडन, देखो टू डिसाइड आ गया, दिख रही है, जिस आ रही है यहाँ पे। तो जब इसको आप यूज करोगे तो जिसको आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, किसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन में। आ रहे भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज बताइए। सर तो ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ब यहाँ यूज होगी वहीं पर यूज होगा, है, जहां पर हम रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज करेंगे वहीं पर रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन आएगा। यस, हाँ, अगर रिफ्लेक्सिव वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन, उसको चेंज करना पड़ेगा। जो जिस होता है उस जिसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, है ना, एक सेकंड रुको, जगह है क्या अपने पास, ये तो लिख लो एक बार, ये लिख लिया आपने सारा, 1 मिनट सर। हाँ एक बार लिख लो, मैं समझाता हूं आपको। ऐसी वर्ब लिस्ट है वर्ब्स की जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं ना। तो जैसे एरिलेन वर्ब है, अब ऐसा तो है नहीं कि शर्मा जी का डिसाइड मैं करूंगा, शर्मा जी खुद डिसाइड करेंगे ना क्या करना है लाइफ में। तो एरिलेन वर्ब है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जब खुद की बात होगी तो ये आदमी क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव यूज करेगा, है ना। खुद डिसाइड कर रहे हो तो आदमी खुद ही डिसाइड करता है। गुस्सा होता है आदमी खुद, अब गुस्सा तुम्हें आ रहा, मैं थोड़ूंगा तुम्हारी जगह, खुद ही होगा आदमी। ऐसे देखो, आदमी मिल रहा है, खुद मिलता है आदमी, तो रिफ्लेक्सिव एक तरह से, है ना। खुश होता आदमी, खुद ही खुश होगा। और बातचीत करोगे किसी से, एंटरटेन करोगे तो क्या होगा, आदमी खुद ही करेगा, इस तरह से, है ना। तो इनका यूज करके दिखा देता हूं कैसे, देखो वर्ब है आपकी जिश,
ऊपर एक अलग से लिख लो इसको, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। जिस ट्रेफल लिख ले, या इस जिस एरिनर लिख ले। एरी एरिनर होता है NERN। जिस एरिनर का होता है टू रिमेंबर। अब देखो, जब मैं इसको चेंज करूंगा, वर्ब तो एरिनर ही है आपकी, एरिनर ने कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या जाएगा, इश एरिनर। देखो, इश एरिनर। अब सब्जेक्ट क्या है, इश, तो जिस भी चेंज करना पड़ेगा, तो जिसका क्या हो जाएगा, इसके साथ मिस हो जाएगा। इसका मतलब हो गया मैं याद रखता हूं, तो मैं खुद याद रखता हूं, ये मतलब हुआ सही तो, है ना। इश एरिनर मिश। तुम याद रखते हो, दू एरिनेस्ट डिश। देखो ये लिखनी पड़ी है ना, एयर जी एस। इसके साथ कॉन्जुगेशन क्या हो गया, एरिनेट, और जिश आता है, एयर का जिश हो जाता है, जी का जिश हो जाता है, एस का जिश हो जाता है। वियर एरी नैन उन्स, हम याद रखते हैं। ईयर एरी नेट ऑयश, तुम लोग याद रखते हो। और जी, जी के साथ एरी नैन जिश। देखो, वे याद रखते हैं या आप याद रखते हो, इसको लिख लो ऐसे करके एक वर्ब को कॉपी में, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि इसको यूज कैसे किया जाता है। ऐसे ही एनसाइडन का कर सकते हैं हम लोग, राइट। ऐसे ही एर्गेन का कर सकते हैं, ट्रेफन का कर सकते हैं, फ्रॉइन का कर सकते हैं, unterhalten का कर सकते हैं। बताइए मित्रों, आया। यस सर। प्रभजोत आ गई क्या। हाँ जी, बताओ, यहां तक कोई दिक्कत। अभी सब वर्ब के साथ, हर वर्ब के साथ जिस नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। हर वर्ब के साथ जिस नहीं लगेगा मित्रों, ये चीज बात ध्यान रखनी है अपने को ना। क्लियर, चलें आगे। सबजू तो निगाहे हुए आ जाए। रोहिणी, समझ में आया नहीं आया बताओ। बे में कुछ नहीं है। बे कह रहा है कि आ, आपकी लैंग्वेज में रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती हैं क्या। Vergleichen जी, कंपेयर करिए। इटालियन में देखो कह रहा है, also spreche Italienisch. Wir haben auch reflexive Verben, aber andere. Zum Beispiel heißen. Mi chiamo Lara. Ich heiße Lara. Mi chiamo Lara, ऐसे बोला उसने। Ich heiße Lara. पता नहीं क्या बोल रही है, इटालियन बोला इसने। दूसरी होती है ऐसा बोला इसने, ऐसे नहीं होती, अलग डिफरेंट होती है। अब एक काम करते हैं, नीचे देखो। Ergänzen Sie, ergänzen Sie zu zweit die Dialoge und lesen Sie vor. Es gibt mehrere Möglichkeiten. यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो ऊपर वर्ब्स लिखी हुई है। जिस फ्रोइन, देखो जिस फ्रोइन का मतलब होता है टू बी हैप्पी, लिख लो टू हैप्पी, खुश होना। एंड शाइडन का मतलब होता है टू डिसाइड, वो तो वर्ब थोड़ी है भाई,
वो तो एडजेक्टिव है भाई, एडजेक्टिव है दोस्त। एनशील्डिंग होता है टू सॉरी, सॉरी बोलना ना। जिस ट्रेफन टू मीट, टू हैप्पी। सर एंशोल्डिंग एक्सक्यूज मी भी तो होता है। वो सर नाउन हो गई ना एनशील्डिंग तो। अच्छा। वो सॉरी हुई, ये सॉरी बोलना हुआ ना, ये फर्क है। ओके। टू रिमेम्बर, क्रिया और संज्ञा में फर्क है ना। यस सर। वो एनशील्डिंग हो गया है ना। और पेरपशीडन का मतलब होता है एक तरह से अब अलविदा कहना। टू फेयर बोल समवन ना। जिस पेरपशीडन का टू फेयरवेल, टू फेयरवेल समवन बोल सकते हो आप, समवन ना। टू से गुड बाय भी बोल सकते हैं, टू से गुड बाय, टू से गुड बाय। अब फर्स्ट दे रखा है शोन। शोन को होता है ब्यूटीफुल। दास ईयर आले दा साइड। अब देखो यहाँ पे दास आ रहा है एक तो, दास की वजह से वो आपका चली गई लास्ट में, सब्जेक्ट है आपका ईयर। ब्यूटीफुल कि तुम सब लोग यहाँ पे हो, है ना। vielen Dank für die Einladung। तो देखो यहाँ पे पूरा कैसे करेंगे ये डीएल इसके बाद। शोन दास ईयर दा आले, सॉरी, शोन दास ईयर आले दा साइड। ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी बात है कि तुम सब लोग यहाँ पे हो। तो अब आदमी जब तो मैं क्या बोलूंगा, इश फ्रॉय मिश ज़ेयर, तो क्या हो जाएगा, जिस फ्रॉइन वर्ब यहाँ पे हम यूज कर देंगे तो क्या हो गया, इश फ्रॉय मिश ज़ेयर, आई एम रियली वेरी हैप्पी। ये मतलब हो गया मैं बहुत खुश हूं, है ना। तो ये पूरा कर दिया, ये एक नंबर पे आ गया आपका जिस फ्रॉयन आ गया। देखो ये रहा। तो फीलन डांग फ्यूडी आई ला, पूरा डियलॉग बन गया, है ना। अब सेकंड थर्ड और फोर्थ में कोशिश करो क्या आएगा। ऊपर रिफ्लेक्सिव वर्ब दे रखी है, बाकी जो डॉट 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 करके इनको आपको पूरा करना है ना। कोशिश करो, 2 मिनट लो एक बार, है ना, आराम से, फिर साथ में करते हैं, राइट। टू बी हैप्पी करो, टू बी ग्लैड या टू बी हैप्पी। रेहान हट अब गिजाक, अब जागन का मतलब होता है टू कैंसिल या टू डिनाई, कैंसिल ही है। रेहान हट अब गिजाक, अब जागन वर्ब है। अब जागन परफेक्ट फॉर्म है। अब परफेक्ट क्या हो गई अब जागन की, अब गिजाक। रेहान हाथ अब गिजाक एरिस क्रांक उंट। देखो उंट क्या आना चाहिए, बीमार है वो, तो नहीं आ रहा तो सॉरी बोलेगा कि नहीं बोलेगा आदमी, तो क्या हो जाएगा, उंट उंट एनशुल्डिक्ट जिश ना। तो क्या हो जाएगा, एंड शुल्डिक्ट जिश एरिस क्रांक उंट एनशुल्डिक्ट जिश, वो बीमार है और वो सॉरी बोलता है ना। ओ शाडर होफेंटलिश विद एस स्नेल गिजुन दान, मतलब वो जल्दी ठीक हो जाएगा, आशा करता हूं, मैं आशा करता हूं कि होपफुली विद एर स्नेल गिजुन मतलब जल्दी वो ठीक हो जाएगा। होपफुली ही विल बी बेटर सून दान। तो जब ठीक हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा, मुलाकात करेगा। दान ट्रेफन भी है दान
treffen wir uns। देखो wir की वजह से क्या हो गया, uns आ गया। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज कर दी हमने, treffen, और कौन सी यूज करी यहाँ पे, Entschuldigung तो था ही, Entschuldigung भी आएगा, है ना। अब आया समझ में कैसे कर रहे हैं हम लोग, ऊपर जो वर्ब दे रखे हैं उनको यूज कर रहे हैं ना। कोम्स डू आउट सो पार्टी फॉन टिम, तुम टिम की पार्टी में आ रहे हो। इश गुड, मुझे याद है, ऐसे बोलते हैं, इश एरिनेरे मिश गुड अन जाइने लेस्टेस यार, अन जाइने पार्टी लेस्टेस यार, मुझे उसकी लास्ट ईयर की बार्ली पार्टी याद है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, इश, अब वर्ब कौन सी आपकी, याद के लिए कौन सी वर्ब आएगी, एरिनेर, तो इश एरिनेर, देखो इश एरी नेर मिश गुट अन जाइने पार्टी लेस्टेस यार, है ना। keine Ahnung meine Schwester feiert auch, मुझे I have no idea, keine Ahnung का मतलब होता है no idea, meine Schwester feiert auch, मेरी बहन भी सेलिब्रेट कर रही है, वही जोलिश की है, कहाँ पे जाना चाहिए मुझे, है ना। तो ये क्या करेगा, आदमी डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा, है ना। इश 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 एंड आएगा, इश एंड मिश, Bis. इश या इश जोल मिश एंड शाइडन बोल सकते हैं, इश एंड शाइड, इश एंड शाइड मिश। या अगर मैं यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज करूं तो इसको ऐसे कैसे ऐसे लिख सकता था मैं, देखो इश जोल मिश, फिर आपकी वर्ब का चलेगी एज ए मॉडल वर्ब में इन्फिनिटिव आ जाएगी, इस जोल मिश एंड शाइडन, देखो ये आएगा एंड शाइडन, क्योंकि मॉडल वर्ब आ गई, मॉडल वर्ब आ जाती है तो वर्ब आपकी इन्फिनिटिव आएगी, और आपका मिश कहां चला गया, वही देखो वर्ब के बाद आ रहा है आपका, ऐसे लिख सकते थे आप, है ना। फोर्थ है आपका vielen Dank für die Einladung, leider müssen wir jetzt gehen also, तो क्या आएगा, जा रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा ये देखो, जिस फेरअपशीडन, तो अलविदा कहने का समय आ गया है, तो also wir verabschieden, देखो wir verabschieden uns, तो हम लोग अलविदा लेते हैं, है ना। शोन दास ihr alle da wart, कि कितनी अच्छी बात है तुम सब लोग यहाँ पे हो, है ना, ऐसा कुछ आएगा। एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा, है ना। ये हटा दूं, लिख लिया सबने, एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं, आंसर में कोई चेंज तो नहीं है, थोड़ा बहुत। ये देखो आ गया ना, इश्कान मिश निस एंड साइडन, या कान आया है कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं, या इस जोल मिश एंड साइडन कि मुझे डिसाइड करना चाहिए, वो भी सही था, तो आ गया फेर ऑफ शीडन बी आ गया, देखो सही है, ये लिखा था अपन ने, क्योंकि वहां पे आल्जो दे रखा है, तो वर्ब की पोजीशन उन्होंने 2 नंबर कर दिया, वियर को आगे लेके, हमने वियर एंड साइडन उन्स लिखा था, लेकिन यहाँ पे आल्जो के हिसाब से उन्होंने क्या करा है, वर्ब को 2 नंबर पे लिख दिया, एक ही बात है ना। और ये हो ही गया, एंशुल्डिक्ट जिश, ये किया ही था हमने, और ये सही है, बाकी सारा ठीक है। देखो भाई, इसमें कोई डाउट हो किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए प्लीज। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया, ऐसा माना जाए। कुशल कुमार, प्रमोद, रोहिणी जी, श्वेतांग जी, बताओ कोई डाउट हो किसी भी तरह का तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर अपन आगे चलते हैं, है ना। No, रिफ्लेक्सिव sir. क्लियर है,
ऐसा माना जाए? Yes. बोल नहीं रहे हो आप लोग। सर सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा और इसका। हाँ, वर्ब को आप, जो वर्ब आई है उनको चेंज करो। जैसे देखे, ये वर्ब दे रखी है ना, देखो, इश फ्रोए, जैसे जिस फ्रोइन है, इसका कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा आपको। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इश के साथ इश फ्रोए मिश, मैं खुश हूं। इसका मतलब हो गया आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। या दू फ्रोइस्ट, दू फ्रोए, देखो फ्रोए, फ्रोए है ना, फ्रोइस्ट, फ्रोइस्ट डिश है, डू फ्रोइस्ट डिश, एयर जी एस, क्या हो जाएगा, फ्रॉइड, जिश, शिश नहीं जिश, वियर, वियर फ्रॉइन उन्स, हम खुश हैं। ईयर, ईयर फ्रॉइड ऑइश, और जी, जी फ्रॉइन जिश, सॉरी, वे खुश हैं या आप खुश हो। इस तरह से इन वर्ब को आपको कॉन्जुगेट करके करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव वर्ब को एक बार ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर और नॉट क्लियर? चलें फिर आगे। एक बार जो जितनी वर्ब आई है ना यहाँ पे, उनको आप इस तरह से कॉन्जुगेट कर लें रिफ्लेक्सिव के साथ, प्रोनोमेन के साथ, तो आपको फिर समझ में आने लग जाएगा कि रिफ्लेक्सिव में और नॉर्मल वर्ब में क्या फर्क है। खुद की बात होती है रिफ्लेक्सिव में, है ना। हटा दिया जाए। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखो फिर आगे फिर परेशान करेगा आपको, जी बना में ना, उन जी विलन जी फियर फ्रागन। 4 क्वेश्चन आपको चूज करने हैं। गेन जी दुश देन कोर्स राउंड, कोर्स रूम में जाना है, जैसे अपना ये कोर्स रूम हो गया, इसमें जाना है। उन फ्रागन जी verschiedene Personen, और दूसरे लोगों से आपको पूछना है, क्वेश्चन करना है। जैसे 1 नंबर, मिट वेम त्रिस दू डिश ऑफ्ट। मिट वेम का मतलब होगा विद हुम, किसके साथ तुम अक्सर मिलते हो। तुम खुद, देखो डिश आ रहा है, तुम खुद किसके साथ अक्सर मिलते हो। आंसर क्या हो सकता है इसका? प्रमोद भैया जवाब देने की कोशिश करो, पूरा आंसर देना है अपने को इस क्वेश्चन का। कैसे देंगे बताओ प्रमोद जी सरकार? Strafe, हाँ वेरी गुड। इस तरफ, Miss, इस तरफ मिश, mit Freunden, मिट, Freunden, ऑफ्ट, देखो ऑफ्ट, of मिट, Freunden. आओ तो मिट माइनन फ्रॉइंडन कर लो। देखो मिट यहाँ पे डाटिव है, तो ये आपका डाटिव रहेगा, बस बन गया। देखो लेकिन यहाँ पे यही चेंज करना था, देखो ये रिफ्लेक्सिव चेंज किया है। इस तरह से मिश ऑफ मिट माइनन फ्रॉइंडन, मैं अक्सर मेरे दोस्तों से के साथ मिलता हूँ। नींद पूरी नहीं होती तो मान लो है, अरे क्या भाई, मेरे को तो आती नहीं वासी बिल्कुल पढ़ाते हुए, पता हो देखा है शाम तक जल्दी जगने के है, जगना पड़ रहा है ऐसा। रोहिणी जी 2 नंबर को बताओ। मिटवेम टाइटस डू डिश मंचमाल, कभी कभी किसके साथ लड़ाई होती है आपकी, फाइट, फाइट मतलब लड़ाई, आर्गुमेंट होती हो मतलब लड़ाई होती हो, है कोई भाई बहन है? रोहिणी जी है क्या आप? बोलो, सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? डू, डू को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा रोहिणी जी, क्या हो जाएगा? डू का इश होगा कि नहीं होगा? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है सर। आ रही है सर। तो रोहिणी जी नहीं बोल पा रही है, क्या दिक्कत है? म्यूट कर रखा है क्या गलती से? श्वेतांग जी आप बताओ एक बार। मिटवेम स्टाइटस डू डिश मंचमाल,
तो सर स्ट्राइटन वर्ब है। इश हाँ? मिश इश स्ट्राइटमिश कली manchmal मंचमाल manch हाँ mit माइनन कॉलिगन mit meinen Kollegen ja mit meinen कॉलिगन Kollegen mit mit meinem besten Freund सिमरनजीत सिंह है, लिख सकते हैं। यस सर हाँ जी, मीठी मीठी झड़पें तो होती रहती है, क्यों? बिल्कुल। हाँ। पारिक जी, आवाज आ रही है आपको? ओ पारिक भैया, बोलते नहीं ऑनलाइन, ये दिक्कत है ऑनलाइन, ये मुझे पसंद नहीं आता ऑनलाइन में ना, पार्टिसिपेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसे मतलब नहीं है फिर क्लास लेने का। फिर अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे, गूंगे होके हम क्लास अपन लैंग्वेज नहीं सीख सकते। यह है दिक्कत वाली बात। रोहिणी जी वापस आ गई क्या आप? बोल ही नहीं, रोहिणी जी भी नहीं बोल रही है। चलो एकता जी आप बताइए। वान एरगेस टू डिश, वान का मतलब क्या होता है? वैन मतलब कब, तुम्हें गुस्सा कब आता है, ये मतलब हुआ। वान वान मतलब एरगेर मिश। अब ये वैन से बनेगा, देखो जवाब इसका वैन से दिया जाएगा। इश एर गेर मिश, ये बन गया मुझे गुस्सा आता है जब, यानी कि वैन इश, हाँ इश वैन, क्या कहा कब आता है गुस्सा? बताओ, कुछ कारण रहता है तभी आता है गुस्सा, बताओ। गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मानवीय स्वभाव है, आता है। हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं, जब मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है ना, बोल सकते हैं वेन इश फील वाटन मुस। देखो आ गया, जब मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है तो मुझे गुस्सा आता है। इश एरगेरे मिश वेन इश फील वाटन मुस, या वेन इश इम स्टाउबिन, जब मैं ट्रैफिक जाम में होता, ये हमारे शर्मा जी के लिए है। वेन इश इम स्टाउ स्टा स्टा स्टाउ इम स्टाउ स्टे, जब मैं ट्रैफिक जैम में खड़ा होता हूं तो मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, अगला है आपका वन लैंग्वाइल्स टू डिश। बोर कब होते हो भाई, बोर कब होते हो बताओ? इश लांग वाइल मिश, हाँ भाई निपुण, इश इश लांग वाइल मिश, देखो वान नहीं वैन। हम्म हम्म है हाँ? मतलब अच्छा यूज नहीं कर पा रहे हो, चार्ज पे लगा हुआ है, तभी गुस्सा, तभी बोर हो जाते हो 2 मिनट में। वाह, कितने शानदार हैं आप ना। वेन इश वेन इज एतवास वेन वेन इज वेन इश निस्माक, देखो जब मैं कुछ भी नहीं करता हूं, वेन इश निस्माक, वेन इज निस्माक ऐसे बन सकता है। देखो जब मैं कुछ भी नहीं करता हूं, वेन आई डू नथिंग, तो मैं बोर होता हूं, राइट? इश langweile mich wenn ich nichts mache, बना सकते हो नहीं बना सकते? ओके, खुश कब होते हो भाई? अभी बताया था अपन ने, वैन से बनेंगे सारे ही। रोहिणी वापस आ गए क्या आप? आज बोल नहीं रहे रोहिणी जी, कुछ तो दिक्कत है भाई साहब। प्रमोद क्या बनेगा 5 का भाई? वन फ्रॉइस डू डिश, कब खुश होते हो भाई? वो डायलॉग था ना, खुश तो बहुत होंगे तुम, हैं? बंगला है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है मेरे पास, क्या है तेरे पास? वो बोलता है, शशि कपूर बोलता, अमिताभ बच्चन बोलता है, शशि कपूर बोलता है, शशि कपूर बोलता है मेरे पास माँ है? श्वेतांगी ऐसे ही था ना कुछ? हाँ जी सर।
अमिताभ बच्चन बोलता है बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है। सब कुछ है मेरे पास, तेरे पास क्या है? पापा मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास माँ है, ऐसे बोलता है ना? तो खुश क्यों, कब खुश होते हैं? जब मेरे पास पैसा होता है। आजकल तो ये हो गया है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया सिनेरियो ना। तो इश फ्रॉय मिश वेन इश गेल्ड habe, वेन इश फील गेल्ड habe, बहुत बड़ा खुश हो जाता है आदमी, अरे पैसा है अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो पूरी दुनिया से लड़ लूंगा अब, है क्यों जी, एलन मस्क की तरह, राइट? तो ऐसे ही वन रूस डू डिश हाउस, हाउस रूवन वर्ब है। हाउस रूवन का मतलब रिलैक्स करना। देखो ये सारी वर्ब ऑल लिस्ट बन गई आपकी, पहले 6 आई थी और आ गई सारी। हाउस रूवन का मतलब होता है रिलैक्स करना। कब रिलैक्स करते हो भाई? तो कैसे दोगे आप आंसर, कैसे दोगे? इश रूए मिश हाउस, कैसे लिखेंगे? इश रूए मिश हाउस, कॉमा लगेगा, वेन इश योगा मार्क, देखो वेन इश योगा मार्क, या वेन इश येरन टाक, यहां पे वेन इश येरन टाक कर सकते हो, यहां पे येरन टाक लिख दो और चाहो तो येरन टाक, वेन इश येरन टाक योगा मार्क, जब मैं प्रतिदिन योगा करता हूं तो मैं रिलैक्स करता हूं, राइट? अगला है मिटवेम unterhältst du dich gerne, किसके साथ चिट चैट करते हो भाई? तुम्हें किसके साथ बातचीत करना पसंद है? तो मेरे दोस्तों के साथ। तो आप लिख दो ich unterhalte mich gerne, ich unterhalte mich gerne mit meinen Freunden, है ना, मेरे दोस्तों के साथ। और 8वां है आपका by wem hast du dich heute schon bedankt, किसको धन्यवाद दिया तुमने आज, है ना? किसको दिया? भगवान को दिया। उठते ही अपन किसको धन्यवाद? भगवान को देते हैं। तो आप वो लिख दोगे ich habe mich heute schon bei dem Gott bedankt, या by meinen Eltern bedankt, है ना? सुबह सुबह माता पिता को धन्यवाद दो कि आपकी वजह से मैं संसार में हूं भाई, है राइट? तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को? देखो इश, देखो इश habe, अब यहां डिश आ रहा है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? मिश हो जाएगा। देखो इश habe mich heute, heute schon, ऑलरेडी, schon का मतलब ऑलरेडी है यहाँ पे, by meinen Eltern bedankt, आज सुबह ऑलरेडी मैंने मेरे माता पिता को धन्यवाद दिया, धन्यवाद देता हूं ना, या दिया, यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, तो आज मैंने सुबह मैं माता पिता को धन्यवाद दिया। या बाई माइन एल्टर लिख रहा है तो बाई देम गॉड भी लिख सकते हो, बाई देम गॉड, है ना? गॉड भगवान। आया समझ में नहीं आया? रिफ्लेक्सिव, इसको थोड़ी प्रैक्टिस करना है, इसकी यूबुंग बुक करना, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, और नहीं है तो कल पूछना, क्योंकि सेंटेंस में बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है ना? की लबो कल खत्म हो जाएगा शायद, भगवान चाहिए तो कल खत्म कर देंगे इसको, है ना? 3 पेज बचे हैं इसके, कल अलविदा करेंगे इस चैप्टर को, काफी दिन हो गए, है ना? तो ये था आज का आपका क्लास, आपकी क्लास। कल मिलते हैं, रिफ्लेक्सिव करके आना अच्छे से और फिर इसको आगे बढ़ते हैं, राइट? सो auf Wiedersehen, bis morgen. Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen.